हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर चेतना श्रीवास्तव आपको बॉटनी सब्जेक्ट में सेमेस्टर 3 के पेपर फर्स्ट सिस्टमैटिक्स ऑफ एंजियोस्पर्म के टॉपिक प्रेजेंटेशन देयर ओरिजिन एंड टाइप्स के बारे में बताने जा रही हूँ। I am Dr. Chetna Srivastava, Professor of Botany, Sarojini Naidu, Government Girls Auto PG College, Bhopal, Madhya Pradesh. Our topic is placentation, their origin and types. प्रेजेंटेशन देयर ओरिजिन एंड टाइप्स को समझने के लिए आपको इन बिंदुओं के बारे में स्टडी करनी होगी। फर्स्ट पॉइंट है इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, फिनोमिना ऑफ ओरिजिन एंड इवोल्यूशन, टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन, कंक्लूजन एंड रेफरेंसेस। Introduction. Ovary of carpel consists of ovules which born on the adaxial surface of the carpel lamina. The pattern of arrangement of ovules within the ovary is called placentation. इसका मतलब है कि ओव्यूल किस प्रकार से ओव्यूल में ओवरी के भीतर अरेंज्ड होते हैं। ओव्यूल्स का ओवरी के अंदर अरेंजमेंट ही प्लेसेंटेशन कहलाता है। Definition. The placenta in the ovary is the place of attachment of ovule which is connected through vascular traces with the ovary wall, and arrangement of ovule within the placenta is called placentation. तो आप संक्षिप्त में कह सकते हैं कि अरेंजमेंट ओव्यूल्स का अरेंजमेंट प्लेसेंटा के ओवरी के भीतर प्लेसेंटेशन ही कहलाता है। Phenomena of origin and evolution. Primitive gynecium of angiosperms were made up of several or many carpels, spirally arranged on a more or less elongated receptacle. Primitive carpels have numerous ovules scattered on the laminar surface. The evolution has proceeded through reduction in number of carpels, followed by fusion of carpels and reduction in number of carpels. तो प्रिमिटिव गायनेशियम में नंबर ऑफ कार्पल्स इंडेफिनिट होते हैं जो कि एक इलोंगेटेड एक्सेस पर स्पाइरली अरेंज्ड होते हैं और ओव्यूल्स कार्पल के भीतर स्कैटर्ड होते हैं। इवोल्यूशन की प्रक्रिया में कार्पल्स की संख्या घटी और फ्लोरल एक्सिस भी रिड्यूस हुआ, साथ ही कार्पल के अंदर ओव्यूल्स के नंबर में भी रिडक्शन हुआ है। In primitive carpels, ovules were arranged on its adaxial surface in two rows situated between the midrib and margins, which is known as laminar lateral. According to Takhtajan, the marginal position is derived through suppression of meristematic activity of the marginal portion of the phloem, and laminar lateral position of ovule became laminar lateral position of ovule Phenomena of origin and evolution. With marginal ovules, fusion of carpels resulted into syncarpous condition with axial placentation. In few groups, however, fusion of incompletely closed carpels might have been give rise to parietal placentation. In some cases, incomplete partitions have protruded towards the center, eventually meeting each other and form axial placentation. Free central or central placentation arise from the axile by abortion of partition. When placental column reaches the top of the ovary, it is called central. When column fails to reach the top of the ovary, results into free central placentation. Further reduction of the central column may result into a basal position of the ovule. Basal placentation may arise also by restriction of axial or parietal placentation to the base of the ovary. Similarly, apical placentation arises by progressive restriction of the placenta from the base upwards. These are types of placentations. First, you are seeing here marginal placentation, which is the characteristics of Papilionaceae family.
Second is parietal placentation, where the two carpels are fused to each other by their margins. It is partial fusion and showing parietal placentation. Next diagram you are seeing here showing axial placentation. Axial placentation में ovules axis से लगे हुए दिखाई दे रहे हैं आपको. नेक्स्ट अगेन यू आर सीइंग हियर एक्साइल प्रेजेंटेशन, जहाँ पर तीनों कार्पल आपस में फ्यूज हो रहे हैं और उनके ओव्यूल एक्सिस से अटैच्ड है. नेक्स्ट टू एक्साइल प्रेजेंटेशन यू आर सीइंग हियर फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन. फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन में आप देख रहे होंगे कि ओवरी के लोक्यूलर चैम्बर्स डिसऑर्गेनाइज हो गए हैं और ओव्यूल सेंट्रल एक्सिस से अटैच दिखाई दे रहे हैं, सेंट्रल एक्सिस के चारों ओर लगे हुए दिखाई दे रहे हैं. इसे फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन कहते हैं. नेक्स्ट टू फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन देयर इज बेस एपिकल प्रेजेंटेशन. एपिकल प्रेजेंटेशन में सेंट्रल एक्सिस रिड्यूस होकर के ओवरी के एपेक्स तक सीमित रह गया है, जिसके कारण ओव्यूल ओवरी के एपेक्स पर अटैच्ड हो गए हैं. नेक्स्ट केस में आप देख रहे हैं कि ओव्यूल ओवरी के बेस में लगे हैं, जिसे आप बेसल प्रेजेंटेशन कहते हैं. बेसल प्रेजेंटेशन में ओवरी मल्टी कार्पेलरी हो सकती है लेकिन यूनिलॉकुलर होती है और सेंट्रल एक्सिस रिड्यूस होकर ओवरी के बेसल पॉइंट तक सीमित रह जाता है, जिसके कारण ओव्यूल ओवरी के बेस से अटैच्ड दिखाई देते हैं, जिसे आप बेसल प्रेजेंटेशन कहते हैं. नेक्स्ट स्लाइड आपको इवोल्यूशन ऑफ प्रेजेंटेशन शो कर रही है. फर्स्ट ऑफ ऑल आप यू आर सीइंग हियर मार्जिनल प्रेजेंटेशन. मार्जिनल प्रेजेंटेशन ये जो स्पेशली पेपिलियोनेसी फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, आप पाइजम सेटाइवम मटर फली में बहुत स्पष्ट रूप से देखते हैं कि ओव्यूल उसके मार्जिन से अटैच्ड होते हैं. मार्जिनल प्रेजेंटेशन जनरली मोनोकार्पल ओवरी में देखा गया है. नेक्स्ट आप देख रहे हैं यहाँ पर एक्साइल प्रेजेंटेशन. एक्साइल प्रेजेंटेशन का फॉर्मेशन एक्चुअली मोर देन वन कार्पल्स यानी टू कार्पल्स और मोर कार्पल्स के आपस में फ्यूज होने से होता है. जब ये कार्पल आपस में फ्यूज होते हैं तो इनकी पार्टीशन वॉल ओवरी के एक्सिस के एंड तक पहुंच जाती है. तो कंप्लीट पार्टीशन वॉल के एंड तक पहुंच जाने के कारण एक एक्सिस का फॉर्मेशन होता है और सीड्स या ओव्यूल्स एक्सिस से लगे होते हैं. इस तरह से बनने वाला प्रेजेंटेशन एक्साइल प्रेजेंटेशन कहलाता है. एक्साइल प्रेजेंटेशन जनरली आप मालवेसी फैमिली में देखते हैं. इसके अलावा आप ट्यूबिफ्लोरी के सभी मेंबर्स में एक्साइल प्रेजेंटेशन देख सकते हैं. नेक्स्ट डाउनवर्ड की ओर चले हम तो हम देखते हैं यहाँ पर पैराइटल प्रेजेंटेशन दिखाई दे रहा है. पैराइटल प्रेजेंटेशन एक्चुअली मोर देन टू और मोर देन टू कार्पल्स के आपस में मार्जिन से फ्यूजन के कारण बनता है. इनमें इनकी ओवरी वॉल कंप्लीट वॉल फ्यूजन नहीं होता है, ये पार्शियली अपने मार्जिन से एक दूसरे से अटैच्ड हो जाते हैं, जिसके कारण ओव्यूल ओवरी के पैराइटल्स पर भित्ति पर जुड़े हुए दिखाई देते हैं और इस प्रकार से बनता है पैराइटल प्रेजेंटेशन. पैराइटल प्रेजेंटेशन ब्रेसिकेसी फैमिली और पेपावेरेसी फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है. ये दोनों फैमिलीज ऑर्डर पैराइटल्स के अंतर्गत आती हैं. आइए आप ऊपर की तरफ देखें. टुवर्ड्स द अबव साइड यू आर सीइंग हियर फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन. फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन का फॉर्मेशन भी एक्साइल प्रेजेंटेशन के मॉडिफिकेशन से हुआ है. एक्साइल प्रेजेंटेशन की ओवरीज की पार्टीशन वॉल जब कंप्लीटली डिसऑर्गेनाइज हो जाती हैं और सभी ओव्यूल्स सेंट्रल पॉइंट से अटैच दिखाई देते हैं तो उसे सेंट्रल प्रेजेंटेशन कहते हैं. कभी कभी ये सेंट्रल एक्सिस ओवरी के एपिकल एंड तक नहीं पहुंच पाता, नीचे रह जाता है और सारे ओव्यूल्स इस सेंट्रल एक्सिस के चारों ओर लगे हुए होते हैं, तो इसे फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन कहते हैं. फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन से ही हम आगे बढ़ रहे हैं बेसल प्रेजेंटेशन की ओर. नेक्स्ट पॉइंट आप देख रहे हैं यहाँ पर बेसल प्रेजेंटेशन. बेसल प्रेजेंटेशन का फॉर्मेशन वास्तव में ओवरी के एक्सियल कॉलम है उसके रिडक्शन के कारण होता है.
कभी कभी ये एक्सियल कॉलम केवल ओवरी के बेस तक सीमित रह जाता है, जिसके कारण ओव्यूल ओवरी के बेस पर अटैच्ड होते हैं और इस तरह के प्रेजेंटेशन को हम बेसल प्रेजेंटेशन कहते हैं। ये बेसल प्रेजेंटेशन खास तौर से एस्टरेसी फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। एस्टरेसी फैमिली में आप देखते हैं कि बाइकार्पिलेट ओवरी होती है और बाइकार्पिलेट ओवरी होने के साथ साथ यूनिलोकुलर ओवरी होती है और बीच में आपको एक ओव्यूल दिखाई देता है ट्रांसफर सेक्शन में देखने पर। ठीक इसी तरह से जिस तरह से आपने बेसल प्रेजेंटेशन समझा, इसी तरह से एपिकल प्रेजेंटेशन भी होता है। जब ओवरी का एक्सियल पॉइंट एपेक्स की तरफ सीमित रह जाता है, ओवरी के एपेक्स पॉइंट पर सीमित रह जाता है, नीचे उसका डेवलपमेंट नहीं होता है, रिड्यूस हो जाता है नीचे की ओर डेवलपमेंट, तो ओव्यूल्स का अटैचमेंट ओवरी के एपिकल पॉइंट की तरफ ही रह जाता है। ऐसी स्थिति में एपिकल प्रेजेंटेशन का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं कि हमने कितने तरह के प्रेजेंटेशन देखे। लैमाइनर लेटरल, मार्जिनल, पैराइटल प्रेजेंटेशन, एक्साइल प्रेजेंटेशन, फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन, बेसल प्रेजेंटेशन, एपिकल प्रेजेंटेशन एंड सुपरफिशियल। लैमाइनर प्रेजेंटेशन, लैमाइनर प्रेजेंटेशन का मतलब है कि ओव्यूल्स जो है लैमिना से अटैच्ड होते हैं। कार्पल के लिए कल्पना की गई है कि वास्तव में ये प्रारंभिक रूप से एक लैमाइनर स्ट्रक्चर था, लीफ लाइक स्ट्रक्चर था, जिसके अंदर ओव्यूल्स लैमिनार सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड होते थे। तो इनिशियली जो प्रिमिटिव कार्पल्स आप देखते हैं, फॉलिकुलर टाइप ऑफ कार्पल्स देखते हैं, आप ऑर्डर रानेल्स ग्रुप के कार्पल्स देखते हैं, उसमें लैमाइनर प्रेजेंटेशन देखने को मिलता है। लैमाइनर प्रेजेंटेशन का मतलब है कि ओव्यूल्स लैमिना पर मिडरिप के दोनों ओर अटैच्ड होते हैं। जब मार्जिन की ग्रोथ, लैमिना के मार्जिनल ग्रोथ रिड्यूस हो जाती है, तो ओव्यूल जो मिडरिप के दोनों ओर प्रेजेंट थे वो करीब करीब मार्जिन के नज़दीक पहुंचने लगते हैं, जिससे कि मार्जिनल प्रेजेंटेशन का डेवलपमेंट होता है। लैमाइनर प्रेजेंटेशन in primitive carpels, which are follicle type, generally laminar placentation is found where the ovules are distributed broadly over the lamina. Laminar placentation is found in Nymphaceae, Cabombaceae, Butomaceae, Halobials order, Ladyjabalaceae. Laminar placentation is an ancestral type, यानी primitive type of placentation है। नेक्स्ट प्रेजेंटेशन आपके सामने है मार्जिनल प्रेजेंटेशन एंड पैराइटल प्रेजेंटेशन। जैसा कि हमने आपको बताया कि लैमाइना के मार्जिनल ग्रोथ के रिड्यूस हो जाने के कारण ओव्यूल जो है मार्जिनल पॉइंट की तरफ पहुंच जाते हैं और मार्जिनल प्रेजेंटेशन का डेवलपमेंट होता है। ठीक यहाँ पर आप चित्र में देख रहे हैं मटर फली का चित्र है, जिसे पाइजम सेटाइवम जिसका बॉटनिकल नेम है। यहाँ पर सीड्स जो है मार्जिन से अटैच्ड होते हैं। पाइजम सेटाइवम में कार्पल मोनोकार्पल होता है और यूनिलोकुलर होता है, ओव्यूल्स मार्जिन से अटैच्ड होते हैं, जिसे मार्जिनल प्रेजेंटेशन कहते हैं। नेक्स्ट टाइप आपके सामने है पैराइटल प्रेजेंटेशन। पैराइटल प्रेजेंटेशन का मतलब है कि ओव्यूल्स जो हैं ओवरी की भित्ति से लगे हुए हों। तो जब ओव्यूल पार्टीशन वॉल के एडजॉइनिंग पॉइंट पर अटैच होते हैं तो इसे पैराइटल प्रेजेंटेशन कहते हैं। इसका फॉर्मेशन ओवरी के आपस में इनकम्प्लीट फ्यूजन के कारण होता है। ये मोर देन वन कार्पल से बनी हुई ओवरी में देखने को मिलते हैं। ओवरी बाईचैम्बर्ड भी हो सकती है और यूनिचैम्बर्ड भी हो सकती है, यानी यूनिलोकुलर भी हो सकती है और बाइलोकुलर भी हो सकती है। Marginal placentation. This is found in the monocarpellary ovary. The ovules are attached along the ventral surface and sterile margins of carpels are reduced or absent. This is characteristics of Fabaceae family. Parietal placentation. The ovary is unilocular. Number of placentae indicates the number of carpels. Placentae may be like a cushion without showing the margins of united carpels. It is considered as primitive characteristic feature of Brassicaceae and Papaveraceae. Here you are seeing the axile and free central presentation. First one is axile presentation. As you know that ovaries are fused with each other at the axis of the thalamus and form an
axis where the ovules are attached to the axis. This is known as axial placentation. यहाँ पर आप एक ट्राइकार्पल ओवरी देख रहे हैं. ये axial placentation जनरली मालवेसी फैमिली और ट्यूबिफ्लोरल्स के मेंबर्स में देखने को मिलती है. नेक्स्ट डायग्राम आपको शो कर रहा है फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन. फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन का मतलब है कि ओवरी की पार्टीशन वॉल यानी लोक्यूलर वॉल्स जो है डिसऑर्गेनाइज हो गई हैं. केवल एक सेंट्रल एक्सिस है और एक्सिस के चारों ओर सराउंडिंग द एक्सिस ओव्यूल्स आर अटैच्ड. दिस इज नोन एज फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन. Axial and free central placentation. Axial placentation. The ovary is divided into locules and the ovules are attached to the placenta at the axis. Locules generally indicate the number of carpels generally found in all the members of Tubiflorae and Malvaceae. Free central placentation. This is found in polycarpellary, syncarpus gynoecium. Placenta is found in the center on which ovules are attached. Ovule may be formed in two ways. When the ovary is unilocular, thalamus at the base of the ovary get elongated, forming a central axis on which placenta and ovules develop. Example, primula. In multilocular ovary, ovules attach to the central axis and locule walls or septa get disorganized. Due to this, ovary became unilocular. Example, dianthus, aspergilla and stellaria. This diagram is showing basal and apical placentation. In basal placentation, you are seeing here ovules are attached to the base of the ovary, and in apical placentation, ovule is attached to the apex. Basal placentation. This is found in bicarpellary and polycarpellary syncarpus gynoecium. Ovary is always unilocular. Placenta is found at the base or bottom of the ovary on which generally a single ovule is found. It is found in Asteraceae family. Apical placentation. This is found in Apocarpus gynoecium or Syncarpus gynoecium. Unilocular ovary. No locule, one or more ovules attached at the apex of the ovary. Central axis fails to develop towards the base of the ovary. सुपरफिशियल प्लेसेंटेशन. इस चित्र में आप देख रहे हैं कि सुपरफिशियल प्लेसेंटेशन का मतलब क्या होता है. सुपरफिशियल प्लेसेंटेशन में ओवरी पॉलीचैम्बर्ड हो सकती है, लेकिन सीड्स का अरेंजमेंट इनके पार्टीशन वॉल के इनसाइड पर सुपरफिशियली 2 रोज में होता है. तो एक्चुअली सुपरफिशियल प्लेसेंटेशन भी लैमाइनर सुपरफिशियल प्लेसेंटेशन से ही आगे डेवलप हुआ है. Superficial placentation. This is found in polycarpellary, syncarpus gynoecium having multilocular ovary. Placenta are found on the inner walls of the locule in all directions. Example, nymphia, trappa and lotus. Conclusion. In angiosperms, there are many types of placentations which develop according to evolution and development of carpel. These are laminar, laminar lateral, marginal, parietal, axial, free central, basal, apical and superficial. Placenta is the place where seeds attach within the ovary and embryo gets nutrition from the parent body. This is the summary of these placentation: marginal placentation, axial placentation, parietal placentation, free central placentation, superficial placentation, basal placentation and apical placentation.
थैंक यू सर। इसमें